एजेकियल 38, 39, 40 चैप्टर पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमारी समझ शुद्ध करो, पवित्र करो, हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ कर दो। पवित्र आत्मा आप हमारी समझ में प्रबल हो जाइए और हमें वचन समझ आने दीजिए। इस वचन के आधार से जो आप हमारी समझ में रखोगे उसी के अधीन हम हाँ में हाँ रहे और ना में ना रहे। और पिता पवित्र आत्मा हम विनती करते हमारे समझ से अलग मत होइए। आज तक अभी तक किए हुए गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। प्रभु यीशु के लहू से हमको शुद्ध पवित्र होने दीजिए और हमें दोबारा अपनाइए। पवित्र आत्मा हमारे संगति का अनुभव हमें मिलने दीजिए, आपके साथ के संगति का अनुभव जो परमेश्वर के आत्मा शुद्ध मन देता है, वो अनुभव हमको मिलने दीजिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Chapter 39, God's judgment upon Gog, Israel's victory. First verse, therefore, thou son of man, prophesy against Gog, and say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tobal, and I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel, and I will smite thy blow out of thy left hand, and I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thy right hand. इसको राउंड करके रखो, पकड़ के रखो ये वचन को। Second verse, third verse. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy bands and the people that is with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Thou shalt fall upon the open field, for I have spoken it, saith the Lord God. And I will send a fire on Magog and among them that dwell carelessly in the isles, and they shall know that I am the Lord. So will I make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name any more. And the heathen shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Behold, it is come, and it is done, saith the Lord God. This is the day whereof I have spoken. And they that dwell in the cities of Israel shall go forth, and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the hand staves and the spears, and they shall burn them with fire 7 years, so that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forests, for they shall burn the weapons with fire, and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord God. And it shall come to pass in that day that I will give unto Gog a place that thereof graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea, and it shall stop the noses of the passengers. And there shall they bury Gog and all his multitude, and they shall call it the valley of Hammon Gog. And 7 months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land. Yea, all the people of the land shall bury them, and it shall be to them a renown the day that I shall be glorified, saith the Lord God. And they shall sever out men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth, to cleanse it. After the end of 7 months shall they search. And the passengers that pass through the land, when any seeth a man's bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hammon Gog.
And also the name of the city shall be Hammonah. Thus shall they cleanse the land. And thou son of man, thus saith the Lord God, speak unto every feathered fowl and to every beast of the field, assemble yourselves and come gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men and with all men of war, saith the Lord God. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them. So the house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day and forward. And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they trespassed against me. Therefore hid I my face from them, and gave them into the hand of their enemies. So fell they all by the sword. According to their uncleanness and according to their transgressions have I done unto them, and hid my face from them. Therefore thus saith the Lord God, now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name, after that they have borne their shame and all their trespasses, whereby they have trespassed against me, when they dwelt safely in their land, and none made them afraid. 26 वर्ड्स को राउंड कर लेना. When I have brought them again from the people and gathered them out of their enemies' lands, and I am sanctified in them in the sight of many nations, then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathen. But I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there. पश्चाताप होने के बाद ही हम समझ पाते हैं परमेश्वर कौन है. हालेलुया. 29 verse, neither will I hide my face anymore from them, for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord God. Chapter 40. Time, manner and end of Ezekiel's vision. In the 25th year of our captivity, in the beginning of the year, in the 10th day of the month, in the 14th year after that, the city was smitten. In the self same day, the hand of the Lord was upon me, and brought me thither. In the visions of God brought he me into the land of Israel, and set me upon a very high mountain, by which was as the frame of a city on the south. And he brought me thither, and behold, there was a man whose appearance was like the appearance of brass, with a line of flax in his hand, and a measuring reed, and he stood in the gate. And the man said unto me, Son of man, behold with thine eyes, and hear with thine ears, and set thine heart upon all that I shall shew thee. For to the intent that I might shew them unto thee art thou brought hither. Declare all that thou seest to the house of Israel. And behold, a wall on the outside of the house round about, and in the man's hand a measuring reed of six cubits long by the cubit, and an hand breadth. So he measured the breadth of the building 1 reed, and the height 1 reed. Then came he unto the gate which looketh toward the east, and went up the stairs thereof, and measured the
threshold of the gate, which was 1 reed broad, and the other threshold of the gate, which was 1 reed broad. And every little chamber was 1 reed long and 1 reed broad, and between the little chambers were 5 cubits, and the threshold of the gate by the porch of the gate within was 1 reed. He measured also the porch of the gate within 1 reed. Then measured he the porch of the gate 8 cubits, and the posts thereof 2 cubits, and the porch of the gate was inward. And the little chambers of the gate eastward were 3 on this side and 3 on that side. They 3 were of 1 measure, and the posts had 1 measure on this side and on that side. And he measured the breadth of the entry of the gate 10 cubits, and the length of the gate 13 cubits. The space also before the little chambers was 1 cubit on this side, and the space was 1 cubit on that side. And the little chambers were 6 cubits on this side and 6 cubits on that side. He measured them then the gate from the roof of one little chamber to the roof of another. The breadth was 25 cubits, door against door. He made also posts of 60 cubits, even unto the post of the court round about the gate. And from the face of the gate of the entrance unto the face of the porch of the inner gate were 50 cubits. And there were narrow windows to the little chambers, and to their posts within the gate round about. And likewise to the arches and windows were round about inward, and upon each post were palm trees. Then brought he me into the outward court, and lo, there were chambers and a pavement made for the court round about. 30 chambers were upon the pavement, and the pavement by the side of the gates over against the length of the gates was the lower pavement. Then he measured the breadth of from the forefront of the lower gate unto the forefront of the inner court without 100 cubits eastward and northward. And the gate of the outward court that looked toward the north, he measured the length thereof and the breadth thereof. And the little chambers thereof were 3 of this side and 3 of that side, and the posts thereof and the arches thereof were after the measure of the first gate. The length thereof was 50 cubits, and the breadth 25 cubits. And their windows and their arches and their palm trees were after the measure of the gate that looketh toward the east, and they went up unto it the other side 100 cubits with the inner temple and the porch unto it by 7 steps, and the arch thereof went before them, and the gate of the inner court was over against the gate toward the north and toward the east, and he measured from gate to gate 100 cubits. After that he brought me toward the south, and behold, a gate toward the south, and he measured the posts thereof and the arches thereof according to these measures. And there were windows in it, and in the arches thereof round about like those windows. The length was 50 cubits, and the breadth 25 cubits. And there were 7 steps to go up to it, and the arches thereof were before them, and it had palm trees, one on this side and another on that side, upon the posts thereof. And there was a gate in the inner court toward the south, and he measured from gate to gate toward the south 100 cubits. And he brought me to the inner court by the south gate, and he measured the south gate according to these measures, and the little chambers thereof and the posts thereof,
and the arcs thereof according to these measures, and there were windows in it, and in the arcs thereof round about. It was 50 cubits long and 25 cubits broad, and the arcs round about were 25 cubits long and 5 cubits broad, and the arcs thereof were toward the utter court, and palm trees were upon the posts thereof, and the going up to it had 8 steps. And he brought me into the inner court toward the east, and he measured the gate according to these measures, and the little chambers thereof, and the posts thereof, and the arcs thereof were according to these measures, and there were windows therein, and in the arcs thereof round about. It was 50 cubits long and 25 cubits broad. And the arcs thereof were toward the outward court, and palm trees were upon the posts thereof on this side and on that side, and the going up to it had 8 steps. And he brought me to the north gate, and measured it according to these measures, the little chambers thereof, the posts thereof, and the arcs thereof, and the windows to it round about. The length was 50 cubits, and the breadth 25 cubits. And the posts thereof were toward the utter court, and palm trees were upon the posts thereof on this side and in that side, and the going up to it had 8 steps. And the chambers and the entries thereof were by the post of the gates where they washed the burnt offering. And in the porch of the gate were 2 tables on this side and 2 tables on that side, to slay thereon the burnt offering and the sin offering and the trespass offering. At the side without, as one goeth up to the entry of the north gate, were 2 tables, and on the other side, which was at the porch of the gate, were 2 tables. 4 tables were on this side, and 4 tables on that side. By the side of the gate 8 tables were upon they slave their sacrifices, and the 4 tables were of hewn stone for the burnt offering, of a cubit and an half long, and a cubit and an half broad, and 1 cubit high, whereupon also they laid the instruments wherewith they slew the burnt offering and the sacrifice, and within were hooks an hand broad fastened round about, and upon the tables was the flesh of the offering. And without the inner gate were the chambers of the singers in the inner court, which was at the side of the north gate, and their prospect was toward the south, one at the side of the east gate, having the prospect toward the north. And he said unto me, This chamber, whose prospect is toward the south, is for the priests, the keepers of the charge of the house, and the chamber, whose prospect is toward the north, is for the priests, the keepers of the charge of the altar. These are the sons of Zadok among the sons of Levi, which come near to the Lord to minister unto him. So he measured the court 100 cubits long and 100 cubits broad, 4 square, and the altar that was before the house. And he brought me to the porch of the house, and measured each post of the porch 5 cubits on this side and 5 cubits on that side, and the breadth of the gate was 3 cubits on this side and 3 cubits on that side. The length of the porch was 20 cubits, and the breadth 11 cubits. And he brought me by the steps whereby they went up to it, and there were pillars by the posts, one on this side and another on that side. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 39 अध्याय और 40 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी PSI बाइबल में से। गोग की पराजय, पहले वचन से। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कहे, हे गोग, हे रोश,
मेशेक और तुबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊँगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुँचाऊँगा। वहाँ मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊँगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूँगा। तो अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तो खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं मगोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इसराइल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है, जब इसराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बिनेंगे न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वाले को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मोग का दफनाया जाना। उस समय मैं गोग का दफनाया जाना। उस समय मैं गोग को इसराइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल के पूर्व ओर होगा और आने जाने वालों की तराई कहलाएगा और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इसराइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा, ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर अपने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहाँ के नगर का नाम भी हमोना है। यूं देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इसराइल के पहाड़ों पर करता हूँ। हरेक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सबके सब बाशान के लिए तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसराइल के पुनः स्थापना। मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरे हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इसराइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इसराइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया और वे सब तलवार से मारे गए।
मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। भावी मंदिर का दर्शन। यहेजकेल का यरूशलेम पहुंचाया जाना। 40 अध्याय पहले वचन से। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। पूर्वी फाटक। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से 14 भर अधिक है। अतः उसने दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था और उसके सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई मापकर एक एक बांस भर की पाई। पहरे वाली कोठरियों बांस भर लंबी और बांस भर चौड़ी थी और 2-2 कोठरिया का अंतर 5 हाथ का था। और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी, वह भी बांस भर की थी। तब उसने फाटक का वह ओसारा जो भवन के सामने था माप कर बांस भर का पाया। उसने फाटक का ओसारा माप कर 8 हाथ का पाया और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए। और फाटक का ओसारा भवन के सामने था। पूर्वी फाटक के दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी, जो सब एक ही माप की थी और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई। दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरी की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे मापे और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था। फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसरे के आगे तक 50 हाथ का अंतर था। पहरे वाली कोठरियों में और फाटक के भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खंभे के बीच में झिलमिलीदार खिड़कियां थी और खंभों के ओसारे में भी वैसे ही थी। और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थी और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। बाहरी आंगन। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी। यह फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से
लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक माप कर 100 हाथ पाए। वह पूर्व और उत्तर दोनों और ऐसा ही था। उत्तरी फाटक। तब बाहरी आंगन के उत्तरमुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी। उसके दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी और इसके भी खंभों के ओसारे की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने इसका ओसारा था। भीतरी आंगन के उत्तर और पूर्व की ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उसने फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की गई। दक्षिणी फाटक 24 वचन से आगे। फिर वह मुझे दक्षिण की ओर ले गया और दक्षिण की ओर एक फाटक था और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा मापकर इनकी वैसी ही माप पाई। उन खिड़कियों के समान इसके और इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। दक्षिण की ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसने दक्षिण ओर के दोनों फाटकों की दूरी माप कर 100 हाथ की पाई। भीतरी आंगन दक्षिणी फाटक 28 वचन से आगे। तब वह दक्षिणी फाटक में होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को माप कर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के भी चारों ओर खिड़कियां थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उस पर चढ़ने की को 8 सीढ़ियां थी। भीतरी आंगन पूर्वी फाटक 32 वचन से आगे। फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक को माप कर वैसा हो पाया। इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। भीतरी आंगन उत्तरी फाटक। फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और उसकी भी माप वैसी ही पाई। उसके भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और उनका ओसारा था और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थी। उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उसमें चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। उत्तरी फाटक के निकट स्थित कोठरियां 38 वचन से आगे। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी जहां होम बलि धोया जाता था। होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं का वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थी। फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजें थी और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी, जो फाटक के ओसारे के पास थी, 2 मेजें थी। फाटक के दोनों ओर 4-4 मेजें थी। सब मिलकर 8 मेजें थी जो बलि पशु वध करने के लिए थी। फिर होम बलि के लिए तराशे हुए पत्थर की 4 मेजें थी जो 1.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी।
उन पर होम बलि और मेल बलि के पशुओं को वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर चौवे भर की अंकड़ियां लगी थी और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था। भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक के बाहर गाने वालों की कोठरियों थी, जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे, और पूर्वी फाटक की ओर एक कोठरी थी जिसका द्वार उत्तर की ओर था। उसने मुझसे कहा, यह कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है, उन याजकों के लिए है जो भवन की चौकसी करते हैं, और जिस कोठरी का द्वार उत्तर की ओर है, वह उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सदोक की संतान है, और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके समीप जाते हैं, भीतरी आंगन और मंदिर का भवन। फिर उसने आंगन को माप कर उसे चौकोर अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया, और भवन के सामने वेदी थी। फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया, और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को माप कर 5-5 हाथ का पाया, और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी, और उस पर चढ़ने को सीढ़ियाँ थी, और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थी। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया, और उसके दोनों ओर के खंभों को माप कर 6-6 हाथ चौड़ी पाए। यह तो तंबू की चौड़ाई थी। द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी, और द्वार के दोनों ओर की दीवारें 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई माप कर 40 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा, और 2-2 हाथ को खंभों के पास लौटी थी। बस इतना ही था। मैंने 41 अध्याय को कंटिन्यू पढ़ा, क्योंकि उधर कोई दूसरा चीज़ लिखा हुआ नहीं था, तो वो दिखाई नहीं दिया मुझे 41 अध्याय लिखा हुआ है। हम यहाँ एक वचन सिर्फ आगे चले गए थे, बस यहाँ तक ही है। 49 वचन। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी, और उस पर चढ़ने की सीढ़ियाँ थी, और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थी। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की ये वचन पढ़ने के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि ये वचन हम में भर चुके हैं, और हम विश्वास करते पवित्र आत्मा, ये वचन ज़रूर तो हमें अपने अकेले समय में इसकी बातों को तो हमें प्रकाशन देगा, इसके विषय में हमें तो अज्ञान नहीं रखेगा कि ये क्या लिखे हुए वचन है। निश्चित है पिता, तो हमें अज्ञान नहीं रखेगा। हम पूरी समझ आपसे प्राप्त करने की आशा रखते हैं। निश्चित तो हमारी आशा पूरी करेगा। यीशु नासरी के नाम में हमें फिट कीजिए, फिक्स कीजिए। पवित्र वचनों के आधार से हमें निश्चित रास्ते दीजिए, निश्चित युक्तियाँ दीजिए, निश्चित मन दीजिए, स्थिरता दीजिए। डगमगाने मत दीजिए हमको, दो चित्ते होने मत दीजिए, संदेह करने मत दीजिए, डरने मत दीजिए, हिचकिचाहट होने मत दीजिए। नासरी यीशु के नाम में हमें ईश्वरीय रचना में ढल दीजिए। डिवाइन ऑर्डर लेना इसमें लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 15 चैप्टर 20 वर्स से 27 वर्स तक। 1 क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 20 वचन से 27 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हम अपने अकेले समय में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में पढ़ना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर काम कर सके। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम में मौजूद है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है, और ये लाभ जब हम उठाएंगे तो परमेश्वर जैसा हमको बनाना चाहता है, जिस एरिया ऑफ लाइफ में हमको वो सुधारना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है, सब कुछ वो कर पाएगा। आमीन। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है। हमने अनुग्रह के आत्मा का
निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे, हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में हमको ढल कर लाइए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। यीशु नासरी के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।